Good morning, everyone. I welcome all of you to Sikhya. As you are knowing that we have started a new series regarding UPSC CSAT, and we have started solving previous year questions. We have finished 2 class. Our objective is to solve daily 5 questions from previous year CSAT, and by solving them, not only will be simply getting the answer, but also trying to look at what are the underlying concepts behind those questions, so that you can use them while solving whatever the question already asked, and as well as whatever the future question that you are going to encounter during your preparation. So just by focusing these 5 questions a day, my job is to ensure you that you get a guide, you get an idea of what are the mathematical concept and how to apply common sense, which is really not common, but I will try to imbibe as much I can. So let us begin without any delay. So what are the 5 questions that I am taking today? These are questions from 2020 only. Will be when you'll be looking at this question, one thing will be sure: this question seems to be kind of dicey. While solving them, you will be thinking, okay, I can do this, because they are not so high-fi questions that require some IIT J level preparation. But on the other hand, they are really tricky. If you don't read the question properly, so you may landed up in the wrong answer, and UPSC deliberately keep those answers. Okay, so while solving, what a aspirant can go wrong, and the wrong answer he or she can arrive, that also will be given in the option. Very wisely they will put it. Okay, so my sincere request is to understand the question first. Okay, before attempting anything, try to visualize, okay, what it is asking to do. That is more important than solving. Okay, once you know what is to be done, then your flow will come, okay, while solving this problem. See, as far as this CSAT is concerned, and especially this arithmetic portion, people of different background, okay, let us say arts and all, those who are having also engineering also, they think some big formula will be remembering and will try to apply. See, that is not going to work at all. Okay, until and unless you are not knowing how to derive those formula, what are the concepts behind those formula, these are simply useless. Okay, so what people will do, they will simply see a profit loss question. Okay, they will try to cram what are the formula for profit loss. Or suppose one mixer allegation problem is there, they will try to uh, like what build such diagrams. Okay, and they will try to fit. Okay, see, this is not going to work. Okay, at least in UPSC it's not going to work. Okay, so let me begin the first question. I'll read the question carefully so that you will understand what it is asked. As a result of 25% hike in the price of rice per kg, a person is able to purchase 6 kg less rice for 1200. What is the original price of rice per kg? So what you are understanding, one person is there. Okay, वो एक आदमी था, right? वो क्या कर रहा था? What he was trying to do? He was, let us say, case 1, before the price hike. This case 1 is before price hike. Before price hike, he was able to purchase, let us say, we don't know how much rice he was able to purchase. Let us say he was able to purchase y kg of rice before the price hike. Okay, and we don't know at that time what is the price of the rice. So let us assume before this price hike, that is case 1, price of rice per kg, let us say it was RSX, x per kg, I mean x rupees. Okay, RSX, we don't know what is the price. Now you tell me from this question what you are understanding. He was spending 1200 only, 1200 he was spending. Okay, in both case, a person is able to purchase 6 kg less rice for 1200. That means in both case, before price hike, after price hike, he was spending 1200 only. But before price hike, let us say he was able to purchase y kg rice. After this 25% hike, that is the price increased, he was able to purchase 6 kg rice less. That means y minus 6 kg he will be able to
purchase. I'll come to that. Okay, that means he is having total money how much? 1200. So in the first case, how much rice he will be able to purchase? See the unitary method. Per kg rice price is x. So per y kg it will be x into y, x into y. This is how much? 1200. Are you understanding? Let us say I will tell per kg rice is 40 rupees. Let us say I will tell you. Then for 5 kg, how much it will be? 40 into 5, that is 200. Similarly, here per kg rice price is x rupee. Total I have to buy y kg rice. So what I am doing? Y kg rice into Rs x per kg. So this kg get cancelled, you will get money, xy money. But this total money was how much? 1200. He is having only 1200 rupees. Okay, so this is the equation 1. Case 2. Try to understand. 25% hike happened. What happened? 25% hike happened. This implies what? Earlier the price was how much? Rsx. Now how much the price will become? Rsx था, उसमें क्या होगा? 25%. That means x में 25% हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसको x में ऐड करेंगे. That will the final amount. That means what? This is Rs x plus 25 मतलब x plus, you can write this is 1.25 na, x into 25 by 100. So if you write it systematically, just I am doing for you, so that it will become how much? If you take common x, you will get 1 plus 25 by 100, or if you simplify it, it will become 100 plus 25, 125 by 100, or 1.25, or 1.25. Are you understanding? Or 1.25x, right? Sirf 25%. Always try to remember this shortcut formula. Okay, suppose you are having a article, its price is 100, so 25% increase. That means money will be 100 ka 25%. That means 125. Or let us say you are having 10% rise, so it will become 110. Similarly, you are having the price is x kg. This hike is what? 25%. That means it will become 1.25. Okay, you should able to do it. Okay, I am doing just systematically so that you will understand. This is RSX. X के ऊपर 25% बढ़ गया. That means x into 25 by 100. So the total money will be x plus 25 by 100 into x. So if you simplify, it will become Rs 1.25x. Now in the case 2, this is what? After price hike. So how much rice he will be able to purchase? Earlier he was able to purchase y kg rice. Now you see the question, because of the price hike, he will be able to purchase 6 kg less rice. That means now he will be able to purchase y minus 6 kg. Understanding? Now you tell me the same equation you apply. He is having only 1200 rupees. Okay, he has to buy y minus 6 kg rice. Okay, per kg rice is 1.25x. Can you form the equation? See, y minus 6 into 1.25x will be equal to how much? 1200 na? See, this is what? Unitary method. 1 minus 6 kg into Rs per kg. Rs per kg. Kg got cancelled, you will get the money. Now you see in the first equation what I got? I got in the first equation xy is equal to 1200. That means can I express x in terms of y or y in terms of x? So simply I am having now two equations. Xy is equal to 1200. You see here x is there. Can I write x is equal to 1200 by y? Okay. So just substitute this one into 1.25 into, in place of x, I am writing 1200 by y. Deliberately, why I replaced x? Because you see it is easy. It is in the bracket, and moreover, it will get cancelled also. Both sides you see 1200 got cancelled. Now simply you have to solve for y. Okay. See, this cancel means you are understanding. Yeah? This side it will not 0. This will be 1. If you divide both sides 1200, it will get cancelled. So it will become 1. That means what? Y minus 6 into 1.25. It will, this y is what? Divided here, it will go to that side. It will become y. To multiply this 1.25y minus 6 into 1.25 is equal to y. This 1.25y, this y, I need to find the variable y. So bring everything to the left side. Minus this. This is minus, this will become plus. So you take common, this will become 1.25 minus 1
is equal to 6 into 1.25. Don't multiply, it may get cancelled also sometime. So 1.25 minus 1 means what? 0.25. So this is 6 into 1.25. That means y become 6 into 1.25 by 0.25. Now you simplify, how much it will become? 25 here 5 हो जाएगा ना ये. So 6 into 5 is equal to 30. ये कैसे हुआ पता लगा आपको ना? सिंपली सी 1.25 को अगर आप लिखोगे दिस विल बिकम 125 by 100. यहाँ पे 0.25 है, इसका मतलब है 0.25 मतलब क्या है? 25 by 100. Both if you divide now, this 100 will get cancelled, it will become 125 by 25. So this is 25 into 5 is 125, 5 into 6 is 30. Now you got 30. What is 30? What is y? Tell me what is y? Y क्या है? Y is the before price hike. This is the what? This is the price. This is the number of kg he was able to buy. Now you see the equation. We are having the equation x into y is equal to, I can write here, I think. Okay, I'll take the page here. So that, see, you know x into y is equal to 1200. You got y. Can you find x? Because he is asking what is the price of rice. Okay. So how much it will become? What is he asking? What was the original price of rice of kg? That means before the price hike. That means I am searching x. And what I am searching? I am searching x. I told you in case 1, before the price hike for kg rice, price was what? X. So I am searching x. So x will become 1200 divided by y. 1200 by y is equal to 30. It will become 40. So before price hike for kg rice, the price was 40 rupees. Suppose it will ask what is the after hike? What is the price? You can now find out 40 into 25% hike. That means 1.25. Or this become 40 into 125 by 100. Can cancel it 0, 0. This is 25. This is 2. 2 into 2. It will become 50. Correct? So now you see, by just simply understanding the question, do I need to mug up any formula for this? Okay, no. Just see, this much time I took because to make you understand systematically. Okay, that's why I'm writing this. In exam, you have to write. Okay, simply what I'll do ना, I'll simply what I'll do. Okay, चलो मतलब ऐसे मैं करूंगा कि मेरे पास मान लो बिफोर प्राइस हाइक per kg rice was x. Okay, then let us say I don't know. This unit is very important, so I'll write RSX. Okay, before price hike, let the person was able to buy y kg rice. Okay, he was having 1200 rupee. So simply I know if I multiply this, I'll get the equation x y equal to 1200. Now after price hike, what will happen? Price hike means this x will become RS 1.25x. Okay, he is able to buy now 6 kg less rice. This means y minus 6. So my equation will be y minus 6 into 1.25. Again, he has to spend only 1200 rupees. Simply I'll solve this. Okay, I'll get x and y. Are you understanding? For your sake of understanding only, I'm going step by step. So what you are observing, you have to understand the question. Then only you will be able to formulate the equations. Okay, see here. The average score of a batsman after his 50th innings was 46.4. Very, very easy. See, what do you mean by average? Let us say one batsman is here. He has placed, मतलब उसने 50th इनिंग्स खेला है. इसका मतलब मैच 1 से लेके मैच 2, मैच 3 ऐसा करके वो 50 मैच खेला है. तो हर मैच में कुछ ना कुछ तो रन बनाएगा. मान लो पहले मैच में 10 बनाया, दूसरे में 0 बनाया, फिर 100 बनाया. तो उसका एवरेज कैसे हम निकालेंगे? एवरेज स्कोर ऑफ द बैट्समैन इज इक्वल टू सो व्हाट एवर द स्कोर ही हैज स्कोर्ड इन ईच इनिंग्स. दैट मींस फर्स्ट इनिंग्स में कितना स्कोर किया, सेकंड में कितना किया, अप टू 50th इनिंग्स में क्या स्कोर किया, डिवाइड बाय कितना इनिंग्स उसने खेला है. मान लो हम अज्यूम करते हैं कि हर 50 जो इनिंग्स है ना, वो हर इनिंग्स में बैटिंग उसको मिला है. चाहे मिला हो ना मिला हो, हमको लिखना पड़ेगा ना 50. ओके, so this will become the average. This is the concept of average. Now what is asking? The average score of a batsman after his 50th innings was 46.4. So मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, average is equal to first plus second inning score up to 50th inning score by 50 is equal to 46.4. ऐसा मैं लिख सकता हूँ. या फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि फर्स्ट अप टू 50th innings, what will be the total score? Average, if I know the average,
I know the total number of innings. I can simply multiply this. That means this numerator I want. What is the total score from first innings to 50th innings? So this will become what? 46.4 into 50. This I can write simply from the definition of the average. After 60th innings, his average score increased by 2.6. इसका मतलब he played another 10 matches. So again new average become what? फर्स्ट मैच से लेके 50th मैच तो खेल रहा था, उसके बाद 51st मैच भी खेलेगा एंड अप टू 60th मैच भी खेलेगा. उसके बाद we have to divide by 60 because now the total number of match becomes 60. Now what is telling, after that his average increased by 2.6. उसका एवरेज पहले कितना था? 46.4. अभी बढ़ गया 2.6, तो मैं ऐड कर दूंगा, राइट? सिंपली हैव टू ऐड. ओके, तो यहां से फिर मेरे को क्या मिलेगा बताओ? this fast to 50, this total score I know, already I know, right? Okay, क्यों? This is the value. So can I put it there, or can I just simplify like this? Fast to 50th inning score plus 51st to dot 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 60th inning score will be equal to 46.4 plus 2.6. It will become how much? 49 into 60. Okay, अब मेरे को बताओ 51st से लेके 60, इसका क्या होगा टोटल स्कोर? 51st से लेके 60th इनका टोटल स्कोर कितना होगा? 49 इंटू 60 माइनस ये जो है, मतलब 1 to 50th कितना स्कोर किया था? 1 to 50th स्कोर किया था दिस मच. सो आई कैन राइट हियर 46.4 इंटू 50. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो सिंपली आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है. 49 इंटू 60 आपको मल्टीप्लाई करोगे ना, इट विल बिकम 2940. इसको मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम 2320. so it will become what? 620. this multiplication you have to do sometimes. so कैसे अभी यहाँ पे कुछ कॉमन वगैरह जा नहीं रहा है, ठीक है? so इसका मतलब लास्ट 10 innings ना 51st से लेके, मतलब 51st मैच से लेके 60th मैच तक जो 10 innings उसने खेला है ना, तो उसमें कितना स्कोर किया है? वो टोटल 620 स्कोर किया है. और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ओके, व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर इन द लास्ट 10 innings. अब देखो कितना इजी है. लास्ट 10 innings का एवरेज स्कोर पूछा है. लास्ट 10 innings में उसने टोटल रन बनाया 620, 10 मैच में बनाया 620, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 620/10 इज इक्वल टू 62. इसका मतलब पर मैच में उसने एवरेज कितना स्कोर किया? 62. अब बताओ इसमें क्या मैंने यूज किया? बताओ कुछ यूज किया गया? जस्ट बाय अप्लाइंग द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज, उतना ही मेरे को काफी है. अगर मेरे को पता है एवरेज क्या है, एवरेज कैसे निकालते हैं, जस्ट आई हैव टू सब्स्टिट्यूट. तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, नी नॉट टू मग अप एनीथिंग, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विल गो. दिस इज वेरी tricky and interesting question, but people will while reading itself they will get confused and they will try to remember what formula I can put. Okay, let us see. a bottle contains 20 liter of liquid. इसका मतलब क्या है? एक बॉटल है, चलो एक बॉटल बना देते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या है कि 20 लीटर ऑफ लिक्विड है. कौन सा लिक्विड है यहाँ पे? ए लिक्विड है. ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया. 4 लीटर्स ऑफ लिक्विड ए इज टेकन आउट. अच्छा, यहां से फिर क्या हुआ? 4 लीटर ऑफ ए निकाल दिए. इसका मतलब क्या हो जाएगा? अभी बॉटल में क्या क्या रहेगा? अभी बॉटल में, इन बॉटल आफ्टर टेकिंग 4 लीटर ऑफ ए, सिर्फ ए लिक्विड था 20 लीटर का, मैंने 4 लीटर निकाल दिया, तो ए का कितना बच जाएगा? अभी 20 माइनस 4 16 लीटर बच जाएगा, ठीक है? ओके, नाउ आफ्टर टेकिंग आउट रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी. इसका मतलब क्या है? 4 लीटर ए निकाल दिया एंड आई रिप्लेस इट विथ 4 लीटर सेम क्वांटिटी, मतलब 4 लीटर ऑफ बी. इसका मतलब बोतल में अभी मैंने बी डाला 4 लीटर. अभी देखो पहले सिर्फ ए लिक्विड था, 4 लीटर निकाल दिया, 16 लीटर हो गया. उसके बाद मैंने 4 लीटर ऐड किया बी. इसका मतलब अभी वो मिक्सचर बन गया, ए एंड बी का मिक्सचर हो गया. अभी इस मिक्सचर में ए एंड बी का परसेंटेज या पार्ट कितना होगा बताओ? टोटल वही, अभी टोटल क्वांटिटी कितना है? टोटल वही 20 लीटर हुआ, लेकिन ए कितना होगा उसमें 20 लीटर में? ए तो 16 था, टोटल 20. इसका मतलब ए का पार्ट हुआ 16/20. इसका मतलब कितना हुआ? 4/5. अब बी कितना होगा बताओ? 4 लीटर बाई 20, तो कितना हो जाएगा?
1/5, या फिर हमको पता है टोटल पार्ट अगर एक होता है, ए का अगर 4/5 है तो बी का कितना होगा 1 - 4/5, दिस विल बिकम ऑल्सो 1/5। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ओके, तो इन द मिक्सर ए का प्रोपोर्शन कितना है या फिर ए का शेयर कितना है, अभी 4/5 हो गया। अंडरस्टैंडिंग? ओके नेक्स्ट, अगेन 4 लीटर ऑफ द मिक्सर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी। देखो पहले में 4 लीटर ए निकाला जाता था, अभी 4 लीटर मिक्सर निकाल देंगे। ओके 4 लीटर ऑफ मिक्सर, इसका मतलब ए प्लस बी वी आर टेकिंग आउट। तो अभी टोटल क्वांटिटी कितना होगा बताओ? अच्छा ठीक है, पहले क्या था, 20 लीटर था। ओके तो बताओ अभी इसमें 4 लीटर का हमने क्या निकाल दिया, ए एंड बी निकाल दिया। तो उस 4 लीटर में, अब मेरे को बताओ उस 4 लीटर में ए का शेयर कितना होगा, ए का शेयर कितना होगा 4 इंटू, ये मिक्सर है, दिस इज 4 लीटर मिक्सर। अब कोई भी मिक्सर होगा उस बोतल में, मैंने बताया था अभी, ए का पार्ट होगा 4/5 बस शेयर होगा या प्रोपोर्शन होगा, बी का शेयर होगा 1/5। अभी मैंने 4 लीटर निकाल दिया, क्या ए प्लस बी का मिक्सर निकाल दिया। तो जो मैंने निकाल दिया उसमें ए कितना निकल के चला गया, 4 इंटू 4/5, दैट इज इक्वल 16/5 पार्ट। ये ए निकल के चला गया बोतल से। और बी कितना निकल के चला गया होगा बताओ, बी 4 इंटू 1/5 चला गया होगा, इसका मतलब 4/5 पार्ट चला गया होगा। समझ में आ रहा है? ओके तो अभी बताओ मेरे को ए कितना बचेगा बोतल में, ए कितना बचेगा, ए कितना था, ए कितना था बोतल में बताओ पहले मेरे को। ए पहले कितना था, ए पहले था 16 था, ठीक। उस 16 में से आपने निकाल के ले लिया 16/5, तो ये कितना बचेगा बताओ? समझ में आ गया? तो इट विल बिकम 64/5। देखो ए में 20 लीटर था, हमने क्या किया 4 लीटर निकाल दिया, तो ए का बच गया 16 लीटर, लेकिन फिर हम 4 लीटर बी ऐड कर दिए। ओके तो अभी वो मिक्सर बन गया। मिक्सर में हमको ये पता लगा कि अभी ए का कितना पार्ट होगा, ओके इतना पार्ट होगा, इतना पार्ट होगा। अभी उससे फिर 4 लीटर निकाल दिए, उस 4 लीटर में ए कितना चला गया होगा, 4 इंटू 4/5 मतलब 4 इंटू 4/5 मतलब 16/5। तो ए कितना बचेगा, ए तो पहले 16 था, 16 से 16/5 चला गया, इसका मतलब 64/5 बचेगा। बी कितना था भाई, बी तो 4 लीटर था, 4 लीटर से हमने कितना निकाल दिया, 4/4/5 निकाल दिया, इसका मतलब कितना हो जाएगा 16/5। तो अभी केस में बोतल में ये सिनेरियो है, हमने 4 लीटर निकाल दिया मिक्सर, तो ए बचेगा, पार्ट नहीं, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब इतना लीटर बचेगा, यहाँ बिल इतना लीटर बचेगा, 16/5 लीटर बचेगा। अभी क्या बोल रहा है, आपने 4 लीटर मिक्सर निकाल के 4 लीटर बी डाल दिए। ओके तो अभी क्या हो जाएगा बताओ, 4 लीटर बी डालने का मतलब बी का अभी कितना हो जाएगा 16/5 प्लस 4, इसका मतलब कितना हो जाएगा 5, 16 प्लस 20, 36/5। ओके अब मेरे को बताओ उस बॉटल में अभी, तो समझ में आ रहा है, देखो क्वेश्चन क्या बोला था, हमने 4 लीटर मिक्सर निकालने के बाद इट वाज रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी, इसका मतलब आई हैव गिवन अगेन नाउ 4 लीटर ऑफ बी। तो बी का क्वांटिटी रेज होगा, ए का कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी पूछा क्या है, पूछा फाइनल क्वेश्चन में कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए टू दैट ऑफ लिक्विड बी इन द फाइनल मिक्सर, हमको रेशियो पूछा है। तो अभी फाइनल मिक्सर में रेशियो कितना हो जाएगा बताओ, ए का कितना है, ए इज टू बी अभी निकालना है ना, ए का है 64.5, अब बी का तो अभी बढ़ गया, देखो बी 16.5 था, अभी 4 लीटर ऐड कर दिया, इसका मतलब 36.5। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका मतलब क्या है 64.5 इंटू 5/36, ये कितना हो जाएगा बताओ, 16 ये 5 5 कट गया, 16, 16:9। देखो समझ में आ गया? मैं क्या किया, बस मैं सिस्टमेटिकली प्रोसीड किया कि क्या कर रहा है, मतलब मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। ये बोतल है, ओके भाई, यहाँ पे क्या था पहले, यहाँ पे 20 लीटर था, क्या था ए था, उसने क्या किया 4 लीटर निकाल दिया, 4 लीटर ए निकाल दिया। तो अभी इससे क्या मेरे को पता लगेगा, यहाँ पे बोतल में 60 लीटर ए ही बचेगा। उसके बाद बोला कि 4 लीटर बी डाल दिया मैंने,
ओके 4 लीटर बी डाल दिया, इसका मतलब 4 लीटर बी डाल दिया। तो अभी टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा बोतल में, 20 लीटर हो जाएगा ए प्लस बी का मिक्सचर। उस ए प्लस बी मिक्सचर में ए का शेयर कितना होगा, पार्ट, परसेंटेज, प्रोपोर्शन कितना होगा, 16 लीटर था, टोटल 20 लीटर। बी का क्या होगा, 4/20। अभी फिर बोल रहा है इस मिक्सचर से मैंने 4 लीटर फिर से निकाल दिया ए प्लस बी। अच्छा, अगर इस 4 लीटर मैंने ए प्लस बी निकाल दिया, दैट मीन्स आई वुड हैव टेकन हाउ मच शेयर ऑफ ए, 4 into 16/20। हाउ मच शेयर ऑफ बी, 4 into 4/20। Okay, now tell me, so how much it will become now? A was 16 by, sorry, A was 16. I have taken out this quantity, so I have to subtract. So A will become this much. B was 4 liter. I have taken out this much, so B will become 4 minus 4 into 4/20. Okay. फिर से हमको क्या करना है, आई हैव टू रिप्लेस दिस 4 लीटर मिक्सर बाय 4 लीटर ऑफ बी। तो अभी बी का क्वांटिटी में सिर्फ ये 4 लीटर ऐड कर देना है और रेशो निकाल देना है, दैट्स इट। सिस्टमैटिकली हाउ टू गो। ओके, नेक्स्ट। ओके, सी ए फ्रॉग ट्राइज टू कम आउट ऑफ ए ड्राइड वेल ऑफ 4.5 मीटर डीप। मतलब एक वेल है, डीप वेल है। So what is happening, one frog is sitting here, he is trying to come out of the well। okay, ये वेल से वो बाहर निकलना चाहता है। इसका क्या डेप्थ है, 4.5 मीटर। तो ये जो वॉल है ना, ये काफी स्लिपरी है, मतलब वो स्लिप कर जाएगा, काफी फ्रिक्शन कम है यहाँ पे। सो एवरी टाइम द फ्रॉग जंप्स 30 सेंटीमीटर, इट स्लाइड्स डाउन 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर वो एक बार जंप कर लेगा ना, मानो यहाँ पे फ्रॉग है, ये बेस लाइन है, तो फ्रॉग ने क्या किया, एक जंप लगाया, एक छलांग लगाया, तो वो क्या होगा, 30 सेंटीमीटर अप जाएगा, 30 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन अभी बताया था ना स्लिपरी है, मान लो यहां से जंप करके यहां चला गया, स्लिप कर गया, कितना स्लिप हो गया, 15 सेंटीमीटर स्लिप हो गया, इसका मतलब 15 सेंटीमीटर डाउन चला जाएगा। तो नेट कितना होगा, मतलब एक छलांग में, इन वन जंप, अगर फ्रॉग एक जंप लगाता है, उसको नेट कितना गेन मिलेगा, 30 ऊपर गया प्लस 30 सेंटीमीटर, नीचे आ गया 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब हर जो जंप वो करेगा फ्रॉग, उसको 15 सेंटीमीटर वो चढ़ पाएगा। ओके, ही विल बी एबल टू क्लाइंब अप ओनली 15 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ जंप्स रिक्वायर्ड फॉर द फ्रॉग टू कम आउट ऑफ द वेल। तो उसको कितने बार जंप करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है, यूनिट का। यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, पहले तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करो, इजी रहेगा सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें जो हम सिंप्लीफाई करेंगे इजी हो जाएगा। तो 4.5 मीटर मतलब क्या है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 4.5 मीटर इज इक्वल टू 4.5 into 100, this will become how much, this is 45/100 ना, into, sorry, 45/10, so this will become 450 सेंटीमीटर। ओके, नाउ मेरे को बताओ तो टोटल कितने बार जंप करेगा, तो मान लो सेकंड जंप किया उसने, तो कितना हो जाएगा 15, अगेन 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, उसको गेन मिलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 14 + 15, 15 + 15 इट विल बिकम 30 सेंटीमीटर। लाइक दैट सपोज यू वार्ड the whenever this value 450 centimeter will come, then only he will able to come out। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना, 450 डिवाइड बाई 15 कर लेते हैं कि चलो एक जंप में 15 सेंटीमीटर जाना है, उसको तो 450 सेंटीमीटर क्रॉस करना है, तो डिवाइड कर लेते हैं, देन डायरेक्टली विल गेट 30। अभी यूपीएससी देखो कितना चालाक किया है, आंसर में 30 दिया है। तो हम लोग नॉर्मली क्या आता है ना, आंसर यही मार के टिक करके आते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सोचो कि मान लो वो फ्रॉग जो है ना 28 जंप लगाया, कितना, मान लो, मैं बता रहा हूँ क्यों यहाँ पे ये गलत है। सपोज ही हैज टेकन 28 जंप्स, 28 जंप्स, तो नेट उसको कितना, हाउ मच लाइक डिस्टेंस विल बी एबल टू कवर, और हाउ मच डिस्टेंस विल बी एबल टू क्लाइम, 28 इंटू each jump is 15 सेंटीमीटर, दैट मींस 28 into 15 मल्टीप्लाई करो, 420। आर यू अंडरस्टैंडिंग। सो इन द सही बोल रहा हूँ ना मैं, देखो 15 इंटू, सॉरी, ओके करेक्ट तो है, 42 तो है ना, हाँ। 420 सेंटीमीटर, राइट।
Yes, that means in 28 jumps he will cover, each jump he will cover 15 centimeter. So in 28 jumps he will cover 420 centimeter. ओके, ये करेक्ट है। इसका मतलब अभी देखो वॉल को देखो, ये जो वेल है ना इसको देखो। ओके, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 450 सेंटीमीटर। अब मान लो आफ्टर 28 जंप, मतलब वो 28 बार जंपिंग किया, सो ही विल बी एबल टू कवर हाउ मच, 420 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 420? अभी अभी ट्राई करो, यहाँ पे फ्रॉग है। ओके, सपोज फ्रॉम हियर ही विल ट्राई टू जंप, हाउ मच ही विल जंप यू टेल? अगर वो जंप करता है 30 सेंटीमीटर ऊपर चला जाता है ना, इसका मतलब 420 प्लस 30, इट इट सेल्फ विल बिकम 450। इसका मतलब ही विल कम टॉप ऑफ द वॉल। समझ रहे हो ना? देन ही नीड टू स्लिप। इसका मतलब 28 के बाद उसको और एक जंप चाहिए, 28 प्लस 1 29। उसको 30 की जरूरत नहीं है। हम क्या अभी देखो, 27 जंप जब उसका होगा ना, तो 420 माइनस 15 ही विल बी एबल टू कवर 405 सेंटीमीटर। तो एक बार जंप करेगा वो 35 जाएगा, 435 हो जाएगा, लेकिन फिर 15 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो ना? सो 420 हो जाएगा। वैसे ही आफ्टर द 28 जंप ही वाज इन दिस पोजीशन, 420 सेंटीमीटर पोजीशन। अभी यहां से एक जंप मारेगा ना, वो 30 सेंटीमीटर का जंप मारेगा, इसका मतलब वो 450 क्रॉस ही कर जाएगा, जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा, वेल के ऊपर आ जाएगा। इसके इसके बाद उसको स्लिप करने का क्या जरूरत है? वॉल के अंदर वो स्लिप करता रहता है, लेकिन वॉल के ऊपर वो अभी वेल के अंदर अंदर होगा तो स्लिप करेगा। नाउ ही हैज कम आउट ऑफ द वेल, ही इज ऑन द टॉप ऑफ द वेल, ही नीड नॉट टू अगेन स्लाइड। तो यहाँ पे मतलब हम लोग का गलती हो जाता है। सो 28 प्लस 1 विल बिकम 29। सो यही ट्रिक होता है एक्चुअली पीसी में, एग्जाम हॉल में इसको हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, फिर डायरेक्टली वो 30 मार्क करके आ जाते हैं, फिर हमको लगता है हमारा गलत हो गया। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ही कॉमन सेंस चाहिए कि यार जब वो लास्ट जंप लेगा ना, तो उसको और जरूरत ही नहीं है, वो 30 सेंटीमीटर जंप कर लेगा। तो इसमें मतलब चालाकी क्या है कि आपको ना 450 से पहले से 30 माइनस करना चाहिए था, 420। अभी अगर आप वो 420 को कायदे से डिवाइड करोगे ना, 420 को कायदे से डिवाइड करोगे कितना नेट इसको कवर करना है, कितना 420 सेंटीमीटर, क्योंकि 450 कवर करने के लिए जो लास्ट जंप में 30 सेंटीमीटर आपको निकाल देना है, क्योंकि उसको और स्लिप स्लिप मतलब वो स्लिपिंग नहीं होगा, तो बचेगा 420 बाई 15। सो दिस विल बिकम 828। नाउ वन मोर जंप ही हैज टू मेक, सो इट विल बिकम 29। ये सिंपलेस्ट आंसर है, लेकिन बट आई हैव डन इट फॉर यू टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, ए डिजिट एन ग्रेटर देन 3 डिजिट, देखो की वर्ड पे ध्यान दो, डिजिट, फोकस ऑन द वर्ड्स। ओके, ये डिजिट, डिजिट मतलब क्या होता है? 0 1, ये फंडामेंटल है। 3 अप टू 9 इसको डिजिट बोलते हैं। ये नंबर है और डिजिट भी है, लेकिन इसके बाद बाकी जो हो जाएगा वो सब नंबर है, 10 11, बिकॉज वी आर यूजिंग द डिजिट टू फॉर्म दिस नंबर्स। सो डिजिट डिफरेंस, ए डिजिट एन ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 6। अब बताओ व्हाट आर द डिजिट्स ग्रेटर देन 3 डिविजिबल बाई, ओके व्हाट आर द डिजिट यस ग्रेटर देन 3 एंड डिविजिबल बाई 3? तो 3 नहीं हो सकता है क्योंकि ग्रेटर देन 3 पूछ रहा है। सो 6 विल बिकम और 9 विल बिकम। सो 6 एंड 9 है डिविजिबल बाई 3, बट वो बोला कि इट इज नॉट डिविजिबल बाई 6, तो 6 कैंसिल हो गया और बचा 9। इसका मतलब क्या है कि एन 9 होगा। डिजिट बोल रहा है, नंबर बोलता तो बहुत सारे नंबर हो जाता, ठीक है, लेकिन डिजिट बोला है तो यहाँ पे की है डिजिट। सो एन बिकम 9। अभी पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 4। अच्छा देख लो, 2n, आपको अभी n के वैल्यू मिल गया 9, 2 × 9 इक्वल 18। 18 क्या 4 से डिविजिबल है क्या? मतलब होल नंबर मिलेगा क्या? नहीं। 3n, 3 × 9, 27 क्या 4 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं। अब बताओ नेक्स्ट क्या दिया है? 2n+4, 2n+4, 2 × 9+4, 18+4, 22, ये क्या 4 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं। डिविजिबल मतलब होल नंबर आना चाहिए, वैसे तो डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद क्या दिया है? 3n+1, 3n+1, 3 × 9+1, 27+1, 28 तो 4 में डिविजिबल हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पता है डाउट, देखो ये तो बहुत इजी आपको लगा, लेकिन
आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे ना, भाई ये एन क्या आ गया, ये सब मतलब काफी, शायद ये कोई नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ गया, मतलब यहाँ पे कोई जैसे लिटिल फॉर्मेटिलिटी थ्योरम लगेगा, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स लग रहा है। यही नहीं भाई, ये आपको बुद्धू बना रहा है कि आपको इस स्टेटमेंट से बस एन का वैल्यू निकालना था। अब इसके बाद मेरे को बताओ, अगर आपको एन का वैल्यू पता है, इट्स जस्ट ए 10th क्लास मैथमेटिक्स ना, इवन लेसर देन दैट। ओके, नाउ यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट ऑफ दिस फोर नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 4। तो क्वेश्चन पढ़ के ना हमेशा हमको पैनिक नहीं होना है, क्वेश्चन पढ़ के हमको उसका जो क्रक्स है ना उसको निकालना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आई एम कीप ऑन टेलिंग यू, दिस CSAT is actually very funny. I'll tell you, it is very funny. Why? All the question you will be finding in CSAT are related to daily life. अब देखो क्वेश्चन उठा के देखो, ऐसा नहीं कि भाई कोई एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, ये फ्रग वाला क्या है। गांव में तो लोग ऐसे बातें करते हैं ना, कभी कभी कोई बड़े लोग होंगे ना, जैसे आपको कभी याद होगा कि नहीं मेरे को नहीं पता है, जब हम लोग बचपन में होते थे गांव में, तो जब भी हम लोग को कोई फंक्शन वगैरह होता है तो हम लोग वहां पे बैठते, मतलब दैट टाइम विल बी सिटिंग विथ आवर सीनियर्स, विलेज सीनियर्स, दोज हु हैव नेवर गॉन टू स्कूल, बट दे विल आस्क यू दिस काइंड ऑफ अरिथमेटिक क्वेश्चन। चलो बताओ, देयर इज ए फ्रॉग, ओके, ही इज इन द वॉल, तो वो एक बार में जंप करेगा तो इतना होगा, फिर नीचे आ जाएगा। ये क्या, इसको हम लोग मतलब ये डेली लाइफ में यूज होता है। इसीलिए तो वो क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछता है ना, आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि आप इस टाइप का सिचुएशन डेली लाइफ में फेस करते हो। ऐसा नहीं कि भाई कोई किताब से उठा के छाप दिया। ओके, तो अगर आप समझने के लिए कोशिश करोगे ना, तो ये फनी है। लेकिन यहां से फिर आपको डिडक्ट करना है, क्या करना है, आपके थोड़े थोड़े जो स्किल्स है ना, जैसे ये क्लास प्रोग्रेस हो, जैसे आज 5 हुआ, अभी तक मैंने 5 into 5 into 15 क्वेश्चन बताया। अब बताओ इस 15 क्वेश्चन में आई हैव गिवन यू लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट। मैंने एवरेज के बारे में आपको बताया, आपको कोई भी क्वेश्चन मतलब डरने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉफिट लॉस वाला जो क्वेश्चन था ना, डिस्काउंट वाला, वहां पे वो वाला कवर किया। नंबर सिस्टम के बारे में बताया, डिविजिबिलिटी वाले के उसके बारे में बताया, मतलब उसके बाद क्या क्या उसको बोलते हैं, पावर के बारे में बताया। सो यू विल बी एबल टू कवर ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स, and with your common sense, with your own understanding, you will be able to sail through. It doesn't matter, I am telling really, it doesn't matter what background you are, if you are able to maintain that cool, this coolness is very important in this CSET। क्योंकि पहला पेपर GS1 होता है, इतना टफ आजकल आ रहा है, उसके बाद तो मतलब GS2 में बैठते ही GS1 का ख्याल आता है, बाहर नहीं, मतलब भाई होगा कि नहीं होगा। तो फिर हम लोग क्या है कि ना, कुछ भी जल्दबाजी में कुछ भी कर लेते हैं। तो वही प्रॉब्लम, मतलब ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ करता था, ऐसा नहीं कि I'm any exception to this. See, this is a natural thing. It will happen, but you can reduce this anxiety through practice. जितना आप प्रैक्टिस करोगे, इसमें PIQ करना है और कुछ नहीं करना है। आपको लगा कि मैं मॉक लगा दूंगा, C# वाला कोई महंगा सा पता नहीं कितने इंस्टीट्यूट उसका कोर्स ले लूंगा, इससे कुछ नहीं होता है, बिल्कुल कुछ नहीं होता है। ओके, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पे आप ना, आप खुद आप क्या करते हो ना, किसी को सुन लेते हो, वो तो बढ़िया बढ़िया ट्रिक बता के चला जाता है, वो बोलता है कि ये बहुत इजी है। भाई इजी नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, इजी नहीं होता है। वो जो आपको बोल रहा है वो बुद्धू बना रहा है, शायद उसने क्वालिफाई किया कि नहीं, मेरे को डाउट लग रहा है। क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, ये डिफिकल्ट होता है उसको सॉल्व करना, उस प्रेशर में। आफ्टर GS1 2 घंटे के बाद यू विल बी ड्रिपिंग इन, वो इतना धूप होता है ना वहां पे, आपका पसीना निकल रहा होगा, आपको जल्दी जल्दी करना है, पैसेज पढ़ना है, शिफ्ट करना है, लॉजिक लगाना है, रीजनिंग लगाना है। तो द ओनली वे यू कैन डू इट बाय प्रैक्टिस। अब जब तक आप नहीं करोगे ना, टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, जब आपको वो समझ मतलब दैट अंडरस्टैंडिंग इफ यू आर नॉट एबल टू डेवलप, then this is of no use. Even whatever I am teaching it, I am not claiming that okay, after listening this you will be able to clear. No, see, I am giving you the way how to think, that is more important। अब कैसे प्रोसेस कैसे फॉलो करते हुए क्वेश्चन को देख के आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए, किस सीक्वेंस में चलना चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम ओनली ट्राइंग टू टेल यू। आई एम नॉट हियर टू टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस। ओके, सी, दैट इज नॉट एट ऑल माई एम। ओके, if that is the aim, then I have to teach to some 11 12th or let us say engineering student mathematics. This is not that. Okay, this is common sense aptitude. You have to apply what you know. Even if you know little, you have to apply. If you read question properly, if you have a thorough understanding of the question, you should able to do it. Okay, you don't need any formula, just by common sense, just by deducting and finding out from the question itself what will be my next step. So I hope these lecture series are helping you. If you have any doubt in what way I can serve you better, you can simply comment. Okay, so I'm ending the class here. See you in the next class with another set of 5 questions.